السلام علیکم۔ اسٹوری وتھ شامین کے ساتھ آج آپ کے لیے ایک نیو اسٹوری لے کر حاضر ہو گئی ہوں جس کا نام ہے تنہائی۔ گوپال کو اس فلیٹ میں منتقل ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہونے کو جا رہا تھا۔ وہ اپنی ایک عدد ماں کے ساتھ اس فلیٹ میں رہا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، لہذا ذریعہ آمدنی ان کے گھر کی بہت اچھی تھی۔ ان کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا۔ روپیہ پیسہ کسی چیز کی کمی نہ تھی، بس انہوں نے اپنا علاقہ شفٹ کیا تھا اور اس علاقے میں رہنے لگے۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب گوپال بالکنی میں کھڑا ہوا موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ایک دم جب سامنے ایک کھلتی ہوئی کھڑکی پر ایک لال ساڑی میں ملبوس جس کے بال کھلے ہوئے اور دراز سے، گوپال کی جب نظر اس لڑکی پر پڑی وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کا گورا سفید رنگ انتہائی پرکشش تھا۔ اس کے سنہری لمبے دراز بال بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اور اوپر سے دہکتا انگارا لال سرخ رنگ۔ گوپال تو پلک جھپکنا ہی بھول چکا تھا کہ ایک دم اس کے سر پر ایک چست آئی۔ ارے گوپی کے بچے، تو یہاں کسے دیکھ رہا ہے؟ یکدم وہ لڑکی سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ میں کسی کو بھی نہیں، تو پھر مجھے بلا کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے بس، تو کب آیا؟ تو سب چھوڑ اور بتا کیسا ہے؟ آؤ چلتے ہیں اندر، ڈرائنگ میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں، امی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ یہ تھا گوپال کا دوست رگھو۔ دونوں ہی بچپن کے کچے پکے اور بہترین قسم کے دوست تھے۔ کبھی ان میں انبن ہو جاتی تو سالوں بات نہ کرتے، اور کبھی دوستی ایسی ہوتی کہ مانو کبھی روٹھے ہی نہ ہو۔ بہت ہی اچھے دوست تھے۔ تم سے کچھ چھپا رہا ہے گوپال، بتانا کیا بات ہے؟ ارے کچھ نہیں ہے رگھو، کیوں پریشان کرتا ہے؟ اگرچہ میں کھڑا تھا تو اس میں تجھے کیا تکلیف ہو گئی؟ یکدم گوپال کا رویہ بدل گیا تھا۔ رگھو نے بھی منہ بنا لیا تھا، مت بتا، لیکن پکا تو کسی کو ٹیپ رہا تھا۔ جی نہیں، تمہیں کیا میں ایسا لگتا ہوں؟ تو پھر کہاں تھی تیری نظریں؟ مجھے تو سامنے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی تجھے کھجلی ہو رہی ہے نا؟ تیرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے کہ میں نے تجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا کیا چھپا رہا ہے؟ یکدم گوپال بھی بول گیا تھا۔ ارے وہ سامنے گھر میں ایک لڑکی جھانک رہی تھی، اس نے ونڈو کھولی ہی تھی، سارا موڈ آ کے تو نے میرا خراب کر دیا۔ کیا پڑی تھی آنے کی؟ تو نے ہی تو بلایا تھا چائے اور پکوڑوں پر۔ موسم دیکھنا کتنا سہانا ہے۔ اتنے میں امی چائے اور پکوڑے لے کر آ گئی تھی۔ دونوں بچوں انجوائے کرو، اور ہاں، اگر رات میں کچھ اچھا کھانے کا دل ہو مجھے بتا دینا رگھو۔ ارے نہیں آنٹی، بس میں تو یوں ہی نکل آیا تھا ادھر، تو آپ کو بھی تکلیف دے دی۔ میں تو کام سے آگے جا رہا ہوں، میں حد سے حد آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا اور پھر میں آگے کام کے سلسلے میں نکل جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھو۔ گوپال، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، 7 بجے کے قریب مجھے اٹھا دینا، آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اچھا امی، آپ جا کر آرام کر لیجئے۔ امی اپنے کام کر کے رخصت ہو گئی تھی۔ چلنا بالکنی میں چل کے بیٹھتے ہیں۔ امی بھی چلی گئی ہیں؟ ہاں رگھو، چلتے ہیں۔ میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا، میں نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ چائے اور پکوڑے کب کے ختم ہو چکے تھے، دن ڈھل چکا تھا، رات کا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن گوپال کو سوائے اندھیرے کے سامنے والی ونڈو میں کچھ بھی نہ دکھائی دیا۔ تو نے واقعی میں لڑکی دیکھی تھی نا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے ہم یہاں اپنی ٹانگیں سن کرے کھڑے ہیں، اب تو میری ٹانگیں بھی جواب دے گئی ہیں۔ میں چلا۔ تو کس کام کے سلسلے سے جا رہا تھا؟ ارے بس کچھ نہیں، میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ کس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا؟ سمجھا کر گوپال۔ اچھا چل ٹھیک ہے بھائی، تیرے مسئلے تو جانے، اب تو بھی نکل، میں بھی آرام کرنے جا رہا ہوں۔ اور دیکھو، اب مجھے امی کو بھی جگانا ہے، تیرے چکر میں یہاں بہت دیر ہو گئی ہے، انہیں رات کا بھی کھانا بنانا ہے، تیاری کرنی ہے،
और फिर मुझे सोना भी है, सुबह यूनिवर्सिटी की क्लास है और फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा भाई चल। दोनों एक दूसरे को कहकर रुखसत हो गए। गोपाल ने पूरी रात आंखों में काटी थी, न जाने उसकी नींद कहाँ गायब हो गई थी। अगला दिन बहुत मसरूफ रहा। शाम 4 बजे तक गोपाल बहुत ज्यादा मसरूफ असाइनमेंट में लगा रहा था। यकदम जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो 5 बज रहे थे। उसने तमाम काम अपना एक्साइट किया और जाकर बैल्कनी में वापस खड़ा हो गया था। आज उसकी माँ घर पर नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर 5:30 बजे मोबाइल की घड़ी पर पड़ी, उसने देखा कि सामने फ्लैट से वही विंडो खुली है और आज वो लड़की सफेद साड़ी में मलबूस खड़ी थी। नहायत खूबसूरत, नहायत पुरकशिश, नहायत दिलकश। गोपाल ने अपनी उंगलियां अपने दांतों में दबा ली थी। गोपाल खराब लड़का न था, वो इंतहाई सीरियस और मैच्योर इंसान था, लेकिन वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि गोपाल के दिल को न जाने क्या हो गया था। उसका दिल एक अनजान सी कशिश बनकर उसकी जानिब खींचे चले जाता। रात भर उसने आंखों में काटी और इस वक्त का बेचैनी से इंतजार किया और फिर वो सामने आ खड़ी हुई। यकदम गोपाल की नजर थोड़ी सी साइड में हुई। उसका शायद किसी दोस्त का फोन था। उसने जैसे ही अपना फोन रिसीव किया और नजर सामने दौड़ाई तो यकदम वो विंडो बंद और फिर वही अंधेरा। गोपाल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। ये क्या चक्कर है? शायद ये लड़की कोई फ्लर्ट है, तभी तो। और मुझे क्या मालूम, हम तो यहाँ नए नए आए हैं। मैं पूछ भी तो नहीं सकता ना ये किसका घर है। गोपाल अनजान सी कशिश का शिकार वापस अपने रूम में आ गया और आराम करने लगा था। उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। इस कदर खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। कितनी मासूम, कितनी दिलकश है। बाल किस कदर दराज और सुनहरी हैं। कल की साड़ी से तो और भी ज्यादा गजब की लग रही थी। क्या करूं, कैसे खोज निकालूं इसकी। एकदम वो बिस्तर से उतरा नीचे और फ्लैट में बिल्कुल नीचे लिफ्ट के जरिए पहुंच गया। अब वो छोटे से बने टहल रहा था कि एकदम उसकी मुलाकात एक और लड़के से हुई जो गालिबन वॉक कर रहा था। एक्सक्यूज मी, कैसे हैं आप? जी गालिबन, आप कौन हैं? जी हम यहाँ अभी नए ही शिफ्ट हुए हैं। मेरा नाम गोपाल है। अच्छा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहीं पास में सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। अब तो गोपाल मजीद खुश हो गया था। कौन से सामने वाले फ्लैट्स में? ये जो सामने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं थर्ड मैं थर्ड अपार्टमेंट में रहता हूँ। और आप? मैं यहाँ सामने फोर्थ अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट नंबर 12। और मेरा अपार्टमेंट नंबर 13 था। ये आमने सामने थे। और वो उस लड़की का अपार्टमेंट फ्लोर नंबर 4 था, इसलिए दोनों का सामना बआसानी होता। गोपाल बातों ही बातों में उसको बहुत ज्यादा महव कर चुका था। कल आओ ना मेरी तरफ, चाय पीते हैं। अर्जुन ने गोपाल को ऑफर कर दी। गोपाल को और क्या चाहिए था। वो मिसाल है ना कि अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। फौरन गोपाल राजी हो गया और फिक्स शाम के 5 बजे वो अर्जुन के फ्लैट के बाहर रिंगिंग कर रहा था। डोरबेल बजाने के बाद थोड़ी ही देर में अर्जुन बाहर आया। आ गए गोपाल, आ जाओ आ जाओ। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरी फैमिली बाहर सेटल्ड है। बस मैं यहाँ 1-2 माह और हूँ, मैं भी फिर चला जाऊंगा। महीने में साल में महीने के लिए आता मतलब साल में महीने के लिए आता हूँ। अरे हमारी सारी फैमिली बैरून मुल्क है और मैं बस ये फ्लैट सेल करने के लिए आया हूँ। ये हमारी यहाँ आखिरी प्रॉपर्टी है। मैं लगभग सेल कर ही चुका हूँ। वो तो तुमसे मुलाकात हो गई, सोचा शायद टाइम अच्छा गुजर जाएगा। ऐसी बात है। हाँ, कुछ खास तो है गोपाल, तो मैं अच्छे इंसान हो। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार चुके थे। 8 बज रहे थे। चलो मैं भी घर चलता हूँ, कल मेरी तरफ तुम भी चक्कर लगा लेना। हफ्ता भर गुजर गया था।
دونوں بہت گہرے پکے دوست بن چکے تھے، اور وہیں پر ہی رگھو اس بات کو بہت نوٹ کر رہا تھا کہ گوپال ارجن کو بہت ٹائم دینے لگا ہے، لیکن رگھو اپنے معاملاتوں میں رہتا تھا، اس لیے اس نے اتنی زیادہ انٹرسٹ نہ لی۔ آج نائٹ فلم دیکھنے کا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ مجھے ارجن نے انوائٹ کیا ہے، ہارر تھیم ہے، چلو گے؟ کیوں نہیں، بالکل چلوں گا۔ تینوں مل کر اب ارجن کے گھر میں مووی دیکھنے کا پلان بنا چکے تھے، اور وہیں پر ہی گوپال کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رات کے لگ بھگ 1 بجے تھے، دونوں فلم دیکھنے میں بہت زیادہ مصروف تھے۔ گوپال نے واش روم کا بہانہ کر اب فلیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسی اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا جہاں سے وہ لڑکی اکثر اس کو جھانک کر دیکھا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ اوپر جا رہا تھا۔ لائٹ مدھم ٹمٹما رہی تھی۔ اس اوپر والے اپارٹمنٹ کی ایک لمبی دراز لائن۔ یار، آئیڈیا تو یہی ہے، یہی فلیٹ ہے، فلیٹ نمبر 169، شاید یہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ یکدم اندر سے اسے لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور کوئی اس لڑکی کے ساتھ سرد و کوب کر رہا تھا۔ مسلسل کسی کے مارنے کی آواز آ رہی تھی، نہ تھکنے والے ہاتھ، یہاں تک کہ اس لڑکی کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی۔ گوپال نے بہت چاہا کہ وہ اس دروازے کو توڑ دے، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، کیونکہ اسے ارجن اور رگھو کا ڈر تھا۔ وہ کیا سوچتے؟ کافی دیر کان لگانے کے بعد جب اسے کوئی آواز نہ آئی تو وہ واپس نیچے اتر آیا۔ اتنا لمبا واش روم گئے تھے؟ ارجن مووی دیکھتے ہوئے بولا۔ مووی بھی بس ختم ہونے میں تھی۔ یار بس میرا دل بھر گیا، میں گھر جا رہا ہوں۔ ارجن تم بھی نکل جانا۔ سوری رگھو، تو بھی گھر نکل جانا۔ ارے نا بابا، میں بھی ساتھ چلوں گا، تھوڑی دیر کی تو فلم رہ گئی ہے۔ نہیں، میرا سر پھٹے جا رہا ہے، نیند سے میں جا رہا ہوں۔ اور ارجن، کل ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سے رخصت لے کر بہت تیز اپنے گھر کی جانب آ گیا تھا اور بالکنی میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے فلیٹ کی آج کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اندر روشنی تھی، اور ایک لڑکی سامنے مسلسل کھڑے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقیناً گہری چوٹیں آئی تھیں۔ وہ بے بس اسے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ یہ سب اسے واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ آج کمرے پہ بہت تیز روشنی تھی کہ یکدم گوپال کی ماں نے آواز لگائی۔ گوپال، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو بیٹا؟ رات کے 1:30 بجے ہیں۔ کچھ نہیں امی، ابھی تو آیا ہوں۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم مووی دیکھنے گئے تھے، میں بھی سو گئی تھی، بس تمہیں ہی دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آئی ہوں۔ اچھا ہے آ گئے ہو، جاؤ جا کے آرام کرو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردی نہیں لگ رہی بیٹا؟ جاؤ، بری بات ہے، سو جاؤ، صبح پر یونیورسٹی جانا ہے۔ نہیں مما، میں کل یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ سب خیر ہے گوپال؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ مما پلیز آپ ایزی لیں، پریشان نہ ہو، میں تھک گیا ہوں، مجھے شاید فیور ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی آرام کریں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ بے حال اور ڈھیلے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نہ جانے اس کی دل کی دھڑکن اس لڑکی کو دیکھ کر کیوں بے تاب ہو جاتی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا اپنی اس کیفیت کو لے کر۔ اس نے رات کو پھر آج وہاں جانے کی سوچی اور پلان کے مطابق وہ ارجن کے پاس ہی رکا رہا یہاں تک کہ 12 بج گئے تھے۔ اچھا تو ارجن گھر چلتا ہوں۔ ارے ہاں ہاں، کیوں نہیں، بہت اچھا وقت گزارا تمہارے ساتھ میں نے، پرسوں تو میری فلائٹ ہے، ایسا کرو کل میرے پاس ہی رک جانا،
हाँ देखते हैं, मैंने रघु को भी कह दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये कहकर उसने अलविदा किया और अपना दरवाजा बंद किया। लेकिन गोपाल नीचे जाने के बजाय ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो उसी फ्लैट के सामने जा खड़ा हुआ कि एकदम जब दरवाजा खुला। गोपाल 2 मिनट को तो पीछे हटा जब अंदर से नसवानी आवाज आई, आ जाओ, मैं जानती हूं तुम बाहर खड़े हो। गोपाल को ये एकदम झटका सा लगा था। ये कैसे जानती है कि मैं बाहर हूं? गोपाल ने भी अपने पैर अब अंदर की जानिब कर लिए। वो लड़की दरवाजे के साथ खड़ी थी। आज उस लड़की ने स्याह साड़ी पहनी थी। क्या देखते हो तुम? रोजाना इंतजार करते हो, मैं अक्सर नोट करती हूँ। तुम लोग यहाँ नए आए हो क्या? तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है? तुम कैसे जानते हो? क्या कल वाली पिटाई सुन ली तुमने मेरी? वो लड़की उसकी आंखों में मुसलसल घूर रही थी। गोपाल यहाँ वहां नजरें करने लगा। यकदम उस लड़की ने आगे बढ़ के गोपाल का हाथ पकड़ लिया था। मैं जानती हूँ, तुम कल दरवाजे के बाहर खड़े मेरे ऊपर होने वाला तशद्दुद सुन रहे थे और फिर तुम घर जाकर अपने बालकनी से मेरी विंडो में देख रहे थे। तुम इतनी बातें कैसे जानती हो? मेरा नाम रागिनी है। मैं यहाँ पिछले 6 साल से रहती हूँ। आज मेरा शौहर घर पर नहीं है। बस मेरी छठी हिस्स ने बोला कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारा शौहर नहीं है तो मैं कैसे जान सकता था ये बात? ये तो मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हारा शौहर तुम्हें क्यों मार रहा था? मैंने अपने शौहर से कभी कुछ नहीं मांगा। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अपने ऊंचे ऊंचे मामलातों को डील करने के लिए मुझे पेश करता है और जब मैं मना करती हूँ तो मुझे मारता है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे उसके पार्टनर्स कुछ करना होते हैं और अगर ना करूं तो वो मुझे मारता है। मतलब मैं अब भी नहीं समझा। मेरा शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ इंतहा हद दर्जे का गिरा हुआ इंसान है। वो शराब पीकर मुझ पर तशद्दुद करता है और फिर मुझ पर शक की शुबहात के शुबे में आकर झूठे सच्चे इल्जाम लगाता है। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम उसके पार्टनर्स को खुश करती हो। ये उसका कहना है। वो नशे की हालत में मुझसे ऐसे ही सवालात करता है और जबकि वो मुझे यहाँ बंद रख कर जाता है, ताले में तमाम सामान खुद ला कर देता है। मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अकेली थी, लेकिन मैं अब अपने शौहर के तशद्दुद से तंग आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। वो मुसलसल ये बातें कर कर एकदम सिसकियां सी लेने लगी थी और गोपाल की जानिब बढ़ने लगी, जैसे कि वो उसके गले लगना चाहती हो। गोपाल एकदम पीछे हुआ। ठहरिए मोहतरमा, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। वो दीवार से लगकर जमीन पर बैठने लगी थी। तुम समझ नहीं सकते मेरी तकलीफ को। हाँ, मैं समझ तो नहीं सकता, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने आपको देखा है। मैंने कल आपकी आवाजें चीखों की सुनी है। इतनी ही देर में रिंगटोन बजने लगी। मम्मा, बस मैं आ रहा हूँ। रात के 1:30 हैं। ये तुम्हारा क्या चक्कर है? घर आओ, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ये कौन सा नया दोस्त पाल लिया? बस मम्मा, बस अभी आया। मम्मा का फोन था। जी, मेरी मम्मा का फोन है। मेरा इस दुनिया में सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बू नहीं हैं? नहीं, मेरे पापा नहीं हैं। मैं और मेरी मम्मा ही होते हैं। अच्छा, तभी तो तुम मेरी तरफ इतने ज्यादा खिंचे चले आए। हमदर्दी हो गई है? मालूम नहीं। गोपाल अजीब अजीब सवाल के जवाब देता। वो लड़की उठी और दरवाजा खोल दिया। तुम जा सकती हो। गोपाल भी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से गेट से बाहर आ गया था। दरवाजा बहुत तेज बंद हुआ था।
जैसे किसी नादीदा हस्ती ने बहुत तेज दरवाजा बंद किया हो। सिसकियों की आवाज अंदर से दोबारा आने लगी थी। गोपाल को ना चाहते हुए भी सीढ़ियां उतर के जाना पड़ रहा था। बेटा, क्या हो गया है? तुम इतने उदास क्यों रहने लगे हो? मम्मा, कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस थोड़े पेपर्स की वजह से टेंशन में हूं। आप इस वक्त तक क्यों जाग रही हैं? तुम भी तो आज तक कभी इस तरह घर से नहीं निकले। ये कौन लड़का है? जरा मुझे मिलवाओ तो कल। अरे अरे मम्मा, टेंशन ना लें, वो परसों की फ्लाइट से जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने अपना फ्लैट सेल कर दिया है। बस यूं ही नीचे मुलाकात हो गई थी। अच्छा लड़का है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा खुद बहुत अच्छा है, तो वो खराब दोस्त कैसे बनाएगा। चलो जाके आराम करो, मैं भी सो रही हूँ। गोपाल अजीब कश्मकश का शिकार था। वो एक शहर में डूबा हुआ गोपाल था, मानो जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, उसके अंदर लम्हात को किसी ने रोक दिया हो, उसका दिल महसूसात करना भूल गया हो। वो हर वक्त अपने करीब करीब रागिनी को ही महसूस करता था। उसने आहिस्ता आहिस्ता जब कमरे से बाहर गर्दन निकाली और देखा मम्मा नहीं है, तो वापस जाकर बालकनी में खड़ा हुआ। रागिनी की विंडो की जानिब मुसलसल देखे जा रहा था। भरपूर चांदनी थी, लेकिन उसके फ्लैट में तारीक अंधेरा। कितनी उदास है ना ये लड़की। इसका शौहर इतना बुरा क्यों है? कितनी खूबसूरत तो है। न जाने क्या दुख भरी कहानी है, लेकिन जो भी है, मुझे इससे हमदर्दी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर क्या, कैसे? सुबह होने लगी थी। विंडो का पटना खुला था। शायद रागिनी सो चुकी थी और गोपाल भी अपने कमरे में जाकर अब औंधे मुंह सो गया। 5 बज गए थे। गोपाल उठा ना था। उसे बहुत सख्त बुखार हो चुका था। उसकी अम्मी ने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी हुई थीं। डॉक्टर सर पे खड़ा था। बेटा, इतनी शदीद तकलीफ में हो, तुम इतनी शदीद तकलीफ में हो कि तुम्हें खुद भी होश नहीं। बातें भी कर रहे हो, रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो। क्या हो गया है गोपाल तुम्हें? कुछ नहीं, आपका बेटा बहुत बड़ी डिप्रेशन से गुजर रहा है। ऐसा होता है। मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। ये 4 घंटे में या 5 से 6 घंटे में बेहतर हो जाएंगे, और अगर ये सो जाए तो इसे जगाइएगा नहीं। गोपाल की माँ ने हाँ कही दी थी। गोपाल की माँ डॉक्टर की तमाम हिदायतें सुन रही थी और वो परेशान भी काफी थी कि गोपाल को आखिर हुआ क्या है। एकदम इसको इतना तेज फीवर कैसे हो गया? ये तो भला चंगा सोया था। खैर, हो जाता है। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे जब गोपाल की आंख खुली। उसका सर चकरा रहा था, लेकिन उसका दिल रागिनी की जानिब खींचे चले जा रहा था। उसने देखा कि उसकी अम्मी सो रही हैं। वो दबे पांव उठा और खुद को अब कमरे से बाहर निकाला, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और वापस आकर दोबारा अपनी अम्मी को चेक किया। अम्मी इंतहाई गहरी नींद पे सामने बेड पर सो रही थीं। आहिस्तगी से डोर बंद किया और अब फ्लैट से नीचे उतरकर सामने की फ्लैट की जानिब जा रहा था कि एकदम उजलत में वो चौकीदार से जा टकराया। चौकीदार बहुत जोर से गिरा था नीचे। अरे गोपाल बाबू, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो मैं अर्जुन के फ्लैट जा रहा था। अर्जुन अर्जुन के फ्लैट जा रहे थे? अरे गोपाल बाबू, वो तो सुबह की फ्लाइट से ही एकदम अचानक निकल गए। लेकिन उसको तो कल जाना था। कल जाना था, लेकिन वो तो आज चले गए। हो सकता है किसी और सिटी गए हों और वहां से कहीं और जाना हो। हाँ, उसने कहा तो था कि कुछ डीलिंग्स बाकी हैं। हो सकता है ये एकदम अचानक निकल गया हो। एकदम गोपाल ठहरा। सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम मुझे बताओगे? चौकीदार भी ठिठक गया। जी
जी जरूर पूछिए गोपाल बाबू, क्या पूछना चाहते हैं? गोपाल का सर चकरा रहा था। लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ, मैं तो बस यूं ही बाहर निकल आया। मुझे फीवर है। आइए साइड में बेंच पर बैठते हैं और पूछिए क्या पूछना है। यहाँ पर कब से चौकीदार हो? मुझे यहाँ पर लगभग 8 साल हो गए हैं। अच्छा, तब से ये फ्लैट्स यहाँ पर आबाद हुए हैं? मैं तब से ही यहाँ चौकीदार हूँ और मेरी शुरू से ही नाइट शिफ्ट होती है। क्यों, क्या बात है? क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। उसने घुमा फिरा कर बिलाखिर रागिनी के फ्लैट के बारे में पूछ लिया। आप कैसे जानते हैं रागिनी को गोपाल बाबू? मैं तो पूछ रहा हूँ। वो बेचारी मासूम सी लड़की, उसका दरिंदा सिर्फ शौहर उस पर कितना तशद्दुद करता है। तो क्या यहाँ ये सब कुछ लीगल है? यहाँ की कमेटी इन चीजों को गौर नहीं करती? ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? बस जो ही कह रहा हूँ। क्या कोई यहाँ ऐसी कमेटी है? जी अभी तक तो नहीं है। हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन आप, हम तो खैर यहाँ न्यू हैं, तुम जानते हो। हाँ बाबू, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप रागिनी मैम को कैसे जानते हैं? मैं रोज ही तो देखता हूँ उनको, और मेरी कल परसों उनसे मुलाकात भी हुई थी। चौकीदार खड़ा हो गया और वो घबरा गया। वाकई में आप सच कह रहे हैं? हाँ। उसने साफ साफ चौकीदार को बिला झिझक सब बात बताई। चौकीदार का माथा ठिनक चुका था। आइए आप मेरे साथ जरा आगे चलिए। वो आगे बढ़ा। आइए जरा ऑफिस तक आइए। वो अंदर ऑफिस गया। ऑफिस की चाबी, ऑफिस के दरवाजे की चाबी चौकीदार के पास थी। उसने दरवाजा खोला, डोर लॉक खोला और एक फाइल उठाई जिसमें फ्लैट का नाम दर्ज था। ये देख रहे हैं आप? ये फ्लैट पिछले 6 सालों से खाली है और रागिनी का शौहर ये छोड़कर फ्लैट जा चुका है। वो इसे सेल करने के लिए वो इस फ्लैट को सेल करने की कब से कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खरीद ही नहीं पाता। वहां कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटी हैं। किसी को चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं तो किसी को थप्पड़ पड़ जाते हैं। गोपाल ये सब बातें सुन रहा था। मैं अब तक आपकी बात नहीं समझाऊं। क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मकसद ये है गोपाल बाबू, आपने रागिनी को ठीक देखा है, लेकिन वो रागिनी नहीं है, वो उसकी आत्मा है जो अक्सर भटकती है। और हम ये बात जानते हैं। उस अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर खाली है। अर्जुन भी इसीलिए वो फ्लोर बेचकर निकल गया, क्योंकि वो उसे भी तंग करती थी। लेकिन लेकिन मैं कैसे मान लूं ये बात? अरे भाई, उसको इस फ्लैट में खुदकुशी किए हुए 6 साल हो गए हैं। गोपाल के पैरों तले जमीन निकल गई थी। 6 साल? खुदकुशी? जी बाबू, ऐसा ही। अगर आपकी उससे मुलाकात हुई है तो आप अपनी खैर मनाएं और शुक्र मनाएं कि आपकी जान बच गई, आप जिंदा हैं। वरना पिछले साल 2 लड़के उस फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए। ये सब कैसे हुआ मालूम नहीं। हम रागिनी की अंदर की कहानी तो नहीं जानते, लेकिन वो वहां तन्हा रहती थी और इसका शौहर महीने में एक ही बार इसके पास आता था। और तन्हाई का शिकार रागिनी शायद तन्हाई से आजीज आकर खुदकुशी कर गई थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। जो मेरा दिल रागिनी की तरफ माइल था, अब खौफ खा रहा था। या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो गोपाल बाबू, मैंने आपको जो बताया है वो सच है, वरना आप कल ऑफिस आकर तस्दीक कर सकते हैं। और मैं आपको एक हमदर्दाना नसीहत करना चाहूंगा। इन फ्लैट के जानिब आइंदा
कभी ना जाइएगा। ये फ्लैट उसकी आमाज का है और जो कोई इधर भटक आता है वो फिर भुगते बगैर नहीं जाता। न जाने आप कैसे बच के आ गए और न जाने कैसे आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं भी वहां नहीं भटकता रात में। गोपाल ये सब बातें सुनकर बहुत सख्त उदास हो चुका था। उससे रागिनी की खुदकुशी वाली बात बर्दाश्त ही ना हुई। आइए मैं आपको आपके अपार्टमेंट की तरफ तक छोड़ आता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइंदा ख्याल करिएगा। देख लीजिए उस रास्ते दोबारा ना जाइएगा। और अर्जुन बाबू भी फ्लैट छोड़ गए हैं, लेकिन जिनको उन्होंने सेल किया है वो उनका मसला है। मैंने तो सिर्फ आपसे रागिनी का खुलासा इसलिए किया कि आप वहां जा रहे थे और खुदा ना खास्ता नागहानी मौत का शिकार हो जाते तो। शायद ऐसा ही था। वो मेरी जानिब बढ़ी तो थी, लेकिन मेरी माँ की किए गए फोन ने शायद मेरी जान बचा ली थी। मैं अपने घर आ गया था, अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाया और अपने पेट पर नीम दराज सो गया। रागिनी मेरे दिमाग और दिल से आज तक न गई है, लेकिन मैं बालकोनी में अक्सर खड़ा होता हूँ तो वो मुझे वहां अब दिखाई नहीं देती। मैं उसका वो हसीन चेहरा भूलता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भुला दूं, लेकिन आफरीन ने उसके सफाक शौहर के ऊपर, जो उस पर तशद्दुद करता था, और उसके बेरहमाना रवैये ने उसको खुदकुशी पर मजबूर किया। मैं आज वो फ्लैट छोड़ चुका हूँ। मुझे वो फ्लैट छोड़े हुए लगभग 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग से उस साया फिगन लड़की को भुला ही नहीं सकता। या कह लीजिए कि मुझे उसकी मासूमियत से मोहब्बत सी हो गई थी, और मोहब्बत होना तो एक फितरी अमल है। ये कहीं भी किसी से किसी भी पल हो ही जाती है, इस पर किसी का जोर नहीं।